Good morning, students. Today is our module 6 of same chapter exponents. हम आज क्या करने वाले हैं बच्चों? Again रिवीजन करेंगे. आज हम करेंगे टेस्ट पेपर 2 पेज नंबर 39 पे जो आपको दिया हुआ है. तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं. हम इन्हें सॉल्व करते हैं. 3 raised to the power negative 4 इसका मतलब क्या है? 1/3 raised to the power 4. तो 1 this implies 1/80. This is our answer. Now second part is negative 4 power 3. This will become negative 64. So this is the answer. यहाँ ऑप्शंस नहीं दे रखे, आपको आंसर्स लिखने हैं. इधर 3/4 raised to the power negative 2. तो 4/3 raised to the power 2. This implies 4 into 4 upon 3 into 3. That is 16/9. So this is our answer. Now next question is negative 2/3 raised to the power negative 5. तो ये बन जाएगा 3/2 with a negative sign and power 5. Negative 3 this is a 9. So this 81 3s are. तो आ जाएगा negative 243 upon 30. This is the answer. Next is very simple. इसमें आपके 5/7 raised to the power 0 कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 तो आंसर क्या आएगा? 1. Now let us do the second question. Now question number 2 we have to evaluate this. अब कौन सी आइडेंटिटी इधर यूज हो रही है? ब्रैकेट वाली. पावर टू द पावर, तो यहाँ 3 इंटू -2 हो जाएगा क्योंकि a रेस्ट टू द पावर m, a/b रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू a/b. डिस्क्रिप्टिव आंसर आए तो आपको ये लॉ साथ में लिखने हैं, याद रखिए. अब अपना रजिस्टर निकाल लीजिए आप और साथ साथ सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले कर देते हैं. This is 729 upon 64. This is the answer. You can note down. Now question number 3. तो मैं इधर से इस पोर्शन को रब कर देती हूँ और इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है. This will become 1/3 plus 1/6 divided by 4/3 क्योंकि पावर -1 है. हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. This will become 3/6. ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 3/4. This will become 3/8. बेटे इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना. इसका आंसर 3/8 आएगा. आपकी आंसर की में आंसर को छोड़ दिया है पीछे, इसको करेक्ट कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर
4. Now question number 4. By what number should negative 2 by 3 raised to the power negative 3 be divided? इसको हम किससे डिवाइड करें so that the quotient is this much. So according to the question, the statement will become like this. अब here the power is negative, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. पावर पॉजिटिव, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में, x की जगह 1/x. इधर पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल, और इधर पावर पॉजिटिव. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में इस क्वांटिटी को. और उसके बाद इसकी कैंसलिंग करते हैं. This will become 1 by x is equal to 3 upon negative 2. तो अब ये 1 by x की वैल्यू आई है. x की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों साइड रेसिप्रोकल करना होगा, तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो negative 2 by 3 is our answer. Question number 4. This is our answer. Now question number 5. By what number should negative 3 raised to the power negative 1 be multiplied so the product become this? Now हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी? लेट दैट नंबर इज x. इक्वेशन बनेगी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बिकम negative 1 by 3 into x is equal to 1 by 6. X is equal to 1 by 6 into 3 by negative 1. This will become negative 1 by 2, the value of x. The answer is this. Question number 5. Now let us do the next question. Question number 6. Now question number 6. We have to write in standard form. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल एंड में है, तो ये क्या बन जाएगा? 3.45 into 10 raised to power 2. और इधर भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब एंड में है, तो कितने प्लेसेस जाएगा? 1 2 3 4 5. तो 1.8 into 10 raised to power 5. यहाँ डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है. कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6. दिस विल बिकम 3 into 10 raised to power negative 6. Similarly, in this question, we have to shift on right hand side. 3 4. So 2.7 into 10 raised to power negative 5. So these are the answers. Now question number 7. In this question, we have to find out the value of negative 3 raised to the power negative 3. तो हम इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. negative 1 by 27. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी है. अब 8 में भी वी हैव टू इवेल्युएट दिस. यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसका आंसर निकालेंगे इसके बाद. तो 64 by 27. इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं, तो बी इज द ऑप्शन. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. देखो बेटा, इधर बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी.
दिस विल बिकम 3 raised to power -10. तो इसका आंसर है ये ऑप्शन सी. दिस इज द आंसर. तो हमने वैल्यू नहीं निकाली है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है. अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ बेसिस अगर सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी. अब इक्वालिटी में बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो इसका ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन. Now let us do the next question. Now question number 11. It is very simple. कोई भी बेस हो, पावर 0, आंसर 1. और इसका ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन कौन सा है ये. दिस इज व्हाट ऑप्शन, विच ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. इट इज सी ऑप्शन. इन -6/5 यहाँ -1 पावर है तो रेसिप्रोकल होना है. ऑप्शन है ये डी. -1/3 ये आंसर है. -1/27 ऑप्शन सी. नाउ fill in the blanks. We have to write this into a standard form. तो डेसिमल एंड में है, कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 3.6 into 10 raised to power 5. This is the answer. This is to be written in the standard form. तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होना है, राइट हैंड साइड पे. तो 1 2 3 5. 1.23 into 10 raised to power -5. अब इधर पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -3/2 raised to power 2, which implies 9/4. This is the answer. Next is we have to write this into the usual form. 10 raised to power -3 है तो इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 1000. अब इधर कितने प्लेसेस शिफ्ट लगना है डेसिमल, 3 प्लेसेस के बाद यहाँ डेसिमल कहाँ होगा, एंड में, तो ये आ जाएगा 0.003. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट दिस इनटू द यूजुअल फॉर्म. अब 5.32 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि 10 की पावर -4 है तो कितने प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होना है, 4 प्लेसेस. 1 प्लेस है हमारे पास, कितने जीरोस लगेंगे, 3. 0.0005332. This is the answer. So in this way we have completed our revision, and you have to do revision at your self also. अपने आप प्रैक्टिस भी करें बेटा, and best of luck for your test. Thank you.